Okay, children, going ahead with chapter 1. Now we will see two topics in this lecture. First is prime factors, and second will be how to find HCF and LCM. By chance, both these topics you already know. You must have done in class 6th, 7th, 8th, but we'll just again have a look. This question typically comes for 1 mark. For example, say 54 is written and they will ask you to find the prime factors of it. So I know 6 9s are 54 and I'll break it more. So 2 3s are 6, 3 3s are 9. And now that I have found the factors, it is very important not to leave the sum like this. You will write, okay, there are 3 3s, so 3 cube into 2, these are your prime factors. Always write the answer in this form, always, and never in this form, okay. Of course, some of you are used to writing it like this or doing it like this also. So you can do it like this also, whatever is convenient. You can like, that's how also you get the factors, and then you can just write the factors, okay. Obviously, now when the question from prime factors will come, such small numbers will not be there. I'll send you a few questions to send, in which basically typically either they will be, for example, like this or even bigger, okay. बड़े number होंगे, obviously छोटे number नहीं होंगे, okay. It will they will not be any 2-digit numbers. So again, principle is the same. You start factorizing and then you just have to write the answer. And again, I am repeating, answer you have to write in this form, 2 into 3 का cube or whatever you get. Of course, if in some they ask you factor of 15, 15 का factor क्या होता है? 3 into 5. That तो of course you have to write in this form only, okay. But whenever you are getting any multiples, always write that accordingly. For example, suppose 80 है, ठीक है. 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे मालूम है 16 5 से 80 होता है, एंड देन उसको 16 आई नो 2 into 2 into 2 into 2 2 to the 4 4 to the 8 into 16 into 5. Therefore the answer is 2 raised to 5 into 2 raised to 4 into 5. तो ये मेरा 80 का आंसर हुआ. सपोज मुझे 16 के फैक्टर बोल रहे हैं, तो 16 आएगा ना 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16, and then I will write answer 2 raised to 4, okay. So these two will be the answers अगर मुझे 80 और 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालने को बोले होते. अब we'll see the next stage. Now they will ask you to find HCF and LCM by prime factorization. ऐसा लिखा होगा कि HCF और LCM by prime factorization निकालो. तो जब भी इस तरह का सम आए, नाउ यू विल नॉट यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा जैसे अभी हमने देखा था फर्स्ट क्लास में, जिसमें हमने HCF निकालना सीखा था, बट नाउ वी कांट यूज दैट. अब उसमें स्पेसिफिकली बोला बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. दिस आई थिंक मेनी ऑफ यू विल ऑलरेडी नो, बट इफ यू डोंट नो आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन. फर्स्ट स्टेप है, जो भी नंबर दिए, सपोज क्वेश्चन है कि 80 और 16 के निकालने, ठीक है. तो ये जैसे 80 है, ये 16 है. फर्स्ट स्टेप है ऑब्वियसली उनके प्राइम फैक्टर्स निकालो. 80 का प्राइम फैक्टर है 2 raised to 4 into 5, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 raised to 4. फर्स्ट स्टेप HCF. HCF में we have to write the terms which are common in both, दोनों में होनी चाहिए. तो if I see and compare, तो I see 2 raised to 4 है जो दोनों में कॉमन है. So HCF is 2 raised to 4. अच्छा, never leave the answer like this. 2 raised to 4 का वैल्यू जो भी होता है आपको लिखना है, मतलब 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है आपको वो लिखना है. LCM इज वेरी सिंपल. LCM में बस क्या करना है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सब लिखने हैं और सबकी मैक्सिमम पावर. फॉर एग्जांपल सबसे पहले ऊपर देखते हैं, ऊपर 80 लिखा है. 80 का क्या है, 2 raised to 4 और 5 है, और 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और मैं फिर हमें मैक्सिमम, पहले तो हम 2 लिख देंगे. अब देखना है मैक्सिमम पावर. मैक्स यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो मैक्सिमम पावर 4 ही आएगी इसमें. LCM में अगेन दूसरा एक क्या दिखता है, 5, तो 5 भी लिखोगे आप. एंड 5 नीचे तो नहीं है, बट ऊपर एक बार 5 है और उसकी मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो ये आपका LCM होगा, ठीक है.
तो जब भी whenever we are writing LCM you have to write जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सब लिखने हैं और सबकी मैक्सिमम पावर लिखनी है, चाहे एक में जिसमें भी हो। फॉर एग्जांपल सपोज कोई नंबर है, उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये आया उसका, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है आपका। सेकंड नंबर को आपने किया, उसका ये आया, ठीक है। एक नंबर ये, एक नंबर ये है, एक का ये आया, एक का ये आया। अब आपको लिखना है सबसे पहले HCF। HCF में कौन सा लिखना है, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ 2 दिखता है, 2^3, 2 तो यहाँ नहीं है। 5 स्क्वायर इधर है, इधर 5^4 है, इसमें 5 स्क्वायर तो आ गया। 11 अगेन दोनों में नहीं है, 3 स्क्वायर यहाँ नहीं है, 3, 13 यहाँ नहीं है। तो केवल एक कॉमन प्राइम फैक्टर दिख रहा है, वो है 5। और 5 की भी अगर आपने 4 लिख दिया तो गलत होगा। 5 का कौन सा पावर दोनों में है, वो है स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर, यानी HCF हुआ 25। और LCM क्या होगा, LCM में आपको देखना है मतलब कि LCM तो सबसे सिंपल होता है, सारे प्राइम फैक्टर लिखने और सबकी मैक्सिमम पावर आंख बंद करके। जैसे पहले यहाँ मुझे 2 दिखता है, 2 की यहाँ 3 है और नीचे तो है ही नहीं, तो मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो 3 लिख दिया। नेक्स्ट क्या दिखा, 5 लिख दो। अब 5 की अगेन मैक्सिमम पावर देखनी है दोनों में से जिसमें भी मैक्सिमम हो। यहाँ 2 है, नीचे है क्या 5, हाँ नीचे है, नीचे क्या है मैक्सिमम पावर 4, तो 4। फिर 11 अगेन दोनों में देखना मैक्सिमम पावर किसमें, ऊपर ही है और वो 11 है, तो 1 ही है मतलब, तो 11। फिर आए नीचे, यहाँ पे 3 स्क्वायर है और इससे ज्यादा 3 की पावर है कहीं और नहीं, तो ये 3 स्क्वायर। 5 का तो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, और फिर 13। तो एलसीएम कई बार काफी बड़ा सा भी नंबर आएगा जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और हमेशा मल्टीप्लाई करके ही लिखना है, वो ध्यान रखना। एंड एलसीएम में क्या, अगेन मैं रिपीट करूं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सब आएंगे और सबकी मैक्सिमम पावर। एक एग्जांपल और देखते हैं सो दैट इट इज मोर क्लियर टू यू। सपोज एक नंबर है, उसका किया 2 क्यूब और 7 स्क्वायर। एक नंबर और किया, ठीक है, ये एक फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। पूछा जाए HCF क्या है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में क्या कॉमन है। व्हाट डू यू फाइंड कॉमन इन बोथ, व्हेन यू सी यू फाइंड कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या होगा 1। तो कभी कभी ऐसा सब आएगा, ध्यान रखना कि HCF 1 ही होगा उसमें। और LCM अगर आप देखो, अगेन आंख बंद करके जितने भी प्राइम फैक्टर है सब लिखते हैं, सबकी मैक्सिमम पावर। तो पहला तो आपको दिखता है 2, इधर है 3 और नीचे कहीं दिख रहा है 2 नहीं है, पर ये मैक्सिमम पावर क्या थी 3, तो 3। 7 दिखता है, 7 का पावर 2 है और ये मैक्सिमम है क्योंकि नीचे कोई 7 नहीं है, तो 7, 2। 5 का मैक्सिमम पावर 3 दिखता है, और कहीं है 5 नहीं है, 5, 3। और सिमिलरली 11 स्क्वायर। तो ये आपका एलसीएम आता है, ठीक है। अब एक सम और देखते हैं। सपोज एक नंबर है 20, एक नंबर है 60। 20 और 6 है और आपको बोला इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। यू डू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। फर्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स आप फैक्टराइज करोगे। 20 यू नो, 4 5 are 20 यानी 2 raised to 2 हो गया 4 और 5। 6 का फैक्टर बनाया तो क्या बना 2 into 3। लास्ट स्टेप अब HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप दोनों को एनालाइज करो तो आपको कौन सा दिखता है कॉमन फैक्टर, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, पर यहाँ स्क्वायर है और यहाँ सिंगल 2 है यानी कॉमन 2 है। और एलसीएम में अगेन जितने प्राइम फैक्टर्स हैं सब लिखने एक एक करके और सबकी मैक्सिमम पावर। सबसे पहले जैसे ऊपर मुझे दिखता है 2 और 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 2 ही है, इधर नीचे 2 है बट उसकी 1 है तो हम 2 raised to 2 लिखेंगे। 5 1 है, नीचे नहीं है बट यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 ही है तो 5। और ये नीचे अगर आए तो 2 ऑलरेडी हम आ चुका है हमारा। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 1 ही है तो ये अगर आप देखो
3 5 15, 15 4 60, तो ये आपका एलसीएम आया, ये आपका एचसीएफ आया। अच्छा, जब ये दो नंबर होते हैं ना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑल्सो वेरीफाई, क्वेश्चन आएगा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एक्चुअली में ये एक फॉर्मूला है, वो क्या कहता है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी जो भी हैं इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी जो भी हैं इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन अगर आप देखो, इस क्वेश्चन में एचसीएफ कितना आया था 2, एलसीएम कितना आया था 60 इज इक्वल टू, और ये दो नंबर कौन से थे 20 और 6, तो यहां लिखा हमने 2 इंटू 60 क्या होता है 120, 20 इंटू 6 क्या होता है 120, तो ये वेरीफाई होता है। सो अगर किसी क्वेश्चन पे वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाए तो आपको ये वेरिफिकेशन करना होता है। ठीक है, और आप अपना इस तरह से आंसर चेक भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये एचसीएफ और एलसीएम समझाया, अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा हो यू कैन कॉल और मैसेज मी एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। ओके, सो एनीवे मैं इस पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दूंगा, प्लस क्वेश्चन पेज 11 पे एक्सरसाइज 1.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, और लिखा है जैसे पहला 140, 156, फिर 3825, तो इन नंबर्स के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने, और क्या ध्यान रखना है जो मैंने आपको समझाया, जो भी सपोज 8 है, 8 क्या बनता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो उसको ऐसे नहीं लिखना है, उसको कैसे लिखोगे आप 2 रेज टू क्यूब, ये आपको आंसर लिखना है, ये ध्यान रखना। ओके, सेकंड है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो जैसे पहला दिया हुआ है आपको 26 और 91, फर्स्ट स्टेप आप 26 का प्राइम फैक्टर निकालोगे, 91 का प्राइम फैक्टर निकालोगे, उसके बाद पहले एचसीएफ निकालना कि जो कॉमन है दोनों में, और उसके बाद एलसीएम निकालना। एलसीएम में सारे प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे और सबकी मैक्सिमम पावर जो यहाँ ऑकर करते हैं। जब ये स्टेप हो जाए उसके बाद आपको ऐसा वेरिफिकेशन भी करना। ओके, एंड एक चीज ध्यान रखना, इनकेस किसी समय वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं मिस्टेक करिए आप, तो जबरदस्ती वेरिफिकेशन नहीं करना। ओके, सो फिनिश टिल हियर, चीयर्स।